Good morning, friends. Today we will continue the remaining part of the exercise or practice set 2.1 of the quadratic equation. The remaining part is example number 5, and example number 5 is here. If x is equal to 3 is one root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. Find the value of k. We have to find the value of k from this equation, and value of x is here 3. When we put the value of x in the equation, this quadratic equation, we will get the value of here k. Now we will write here, put the value of x. Put the value of x is equal to 3 in equation. And equation right here, kx square minus 10x plus 3 is equal to 0 is the equation, and we will substitute the value of x here. See here, k into, here is a sign of multiplication, k into x, value of x is equal to 3. Therefore we will write here 3 and this square. Here minus 10 into x is equal to what? 3, and here plus 3 is equal to 0. Therefore k into, that is here 3 square is equal to 9, minus 10 into 3, that is a 30, plus 3 is equal to 0. Now k into 9, that is a 9k, minus 30 minus 3 plus 3, minus 30 plus 3 is equal to minus 27 is equal to 0. Therefore this 9k is equal to minus 27 become here plus 27. Then we will write here remaining part here. Therefore k is equal to 27 divided by 9. Therefore 9 ones are 9, 9 3s are 27, 9 ones are 9, and 9 3s are 27. Therefore value of k is equal to 3. In this way, it is a fifth example. Now we will continue the example number 6. Okay, right here, example number 6. One of the roots of the quadratic equation 5m square plus 2m. We will write the example number 6. One of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7 divided by, complete the following activity to find the value of k. This is the example, and activity, we will write the activity here first. Okay, now we will continue the example number 6, friend, and example number 6 is one of the roots of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7 by 5. Complete the following activity to find the value of k. k की वैल्यू यहाँ पर k है, ये देखिए यहाँ पर k है, और k की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्टिविटी कंप्लीट करना है. नाउ सी first activity in the first box here, that dash is a root of the quadratic equation. कौन सा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? यहीं पर बताया -7/5. तो यहाँ पर लिखा हमने -7/5 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ सी कौन सा इक्वेशन का? 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन का -7/5 का है रूट. तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितना है? -7/5. ये m की वैल्यू है, किसमें रखना है हमें? इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ सी, तो यहाँ पे पुट किया हमने 5, ये 5 को 5 है, m स्क्वायर दैट इज -7/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? m, और m की वैल्यू कितना है? -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0. ओके, देयरफॉर
यहाँ का कैलकुलेशन हम करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके बताया पहले। ये देखो ये 5 और -7/5 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखा हमने, देखो ये 5 को 5 प्लस -7 स्क्वायर इज 49 और 5 स्क्वायर इज 25। ये 5 से 25 कट किया मैंने, तो क्या हुआ 5 25, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 49/5। तो यहाँ पर लिखा हमने 49/5, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर है। प्लस अब ये कैलकुलेशन देखो, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस, 2 into -7 दैट इज -14 और बाय कितना है 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है, 5 और 5 सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ये देखो इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर बताया। ये 5 और 5 एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का जो साइन है वही एक्शन होगी अपनी। तो यहाँ पर क्या होगा अपनी 49 और ये माइनस और ये कितना 49 से 14 अगर माइनस करते हैं तो कितना रहता है अपने पास 35 और ये डिवाइडेड बाय कितना 5। ओके, 5 से 35 में कैंसिल करना है, 5 7 जा 35। ओके, नाउ सी हियर, अब यहाँ पर ये बॉक्स में क्या गया, इसका कैलकुलेशन हमने क्या किया 7 आया, तो इस 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू निकालना है हमें, what will be the value of k here, +7 becomes here -7. Okay, now friends, this is the solution of the example number 6 and we will continue the exercise or practice set 2.2 and practice set 2.2 is solution of the quadratic equation by a factorization method. Okay, we will see the friends first 2 point for exercise 2.2 and exercise 2.2 हमें बताती है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं हम। फैक्टराइजेशन मेथड हियर, राइट हियर फैक्टराइजेशन मेथड फॉर 2.2 FACTORI factorization method हम स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या क्या है इसमें मैं पूरी तरह एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट solve the following quadratic equation by factorization method. Solve the following quadratic equation by a factorization method. Okay, now the first example is that x square minus 15x, x square minus 15x plus 54 is equal to 0. Very simple example. तो हमें क्या क्या पहले करना है, देखिए एकदम स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 1 और थर्ड टर्म क्या है 54, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना गया 54 और 54 के फैक्टर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, अगर यहां पर माइनस है और ये प्लस है तो ये दो फैक्टर्स का क्या होना चाहिए, हमें सम कितना आना चाहिए 15। ओके, तो 7 8 जा 54, सॉरी ओके सर, हियर 54 दैट इज 54 का 9 और 6 ये फैक्टर से 9 6 54 और हमें इसका सम आना चाहिए कितना माइनस, नेगेटिव में, तो इसका क्या होगा माइनस और ये -9 और ये -6। ओके, अब ये जो फैक्टर्स है तो मैं यहां पर लिखता हूं, आई विल राइट हियर, सी हियर x square -9x -6x plus 54 is equal to 0। वेरी सिंपल। अब हम यहां पर ये दोनों का ग्रुप करेंगे,
अब इस ग्रुप से कॉमन कितना आएगा, x और x। यहाँ पर तो कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर x लिखा, x इन अ ब्रैकेट, यहाँ पर कितना रहा, x माइनस ax, बाहर आने के बाद यहाँ पे कितना रहा, -9। ओके, नाउ सी -6 will common here and in bracket here we will write here x, और ये माइनस प्लस माइनस साइन और चौपन, दैट इज 9 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम है, x माइनस 9, ये ब्रैकेट सेम है। अब ये जो ब्रैकेट सेम है उसमें से क्या एक बार लेना है हमें, x माइनस 9, और सेकंड ब्रैकेट क्या होगा, x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टेकिंग एवरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, हर ब्रैकेट हमें 0 लेना है, तो क्या होगा देखिए, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Now see here boys, this x is equal to -9 becomes here +9, comma this -6 becomes here x is equal to 6, and the last answer will be क्या है हमें, 9,6 are the roots of given quadratic equation। ये लास्ट आंसर लिखे हमने। ओके, अब सेकंड एग्जांपल की ओर जाएंगे हम, और सेकंड एग्जांपल है सी। हर एक एग्जांपल 1 बाय 1 देखिए, कैसे कैसे छोड़ा है हमने और सॉल्व कैसे किया वो देखिए। एंड एग्जांपल नंबर 2 की ओर हम आते हैं। एग्जांपल 2 इज x² प्लस x। Okay, I will put here, I will write the example number second, x² plus x minus 20 is equal to 0। अब मैं स्ट्रक्चर बताता हूं। अगर यहां पर प्लस और माइनस है, देखिए प्लस और माइनस है, तो फैक्टर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। फैक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा। अगर यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, अभी का एग्जांपल जो छोड़ा है हमने वो इस तरह, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, तो क्या होगा, यहां पर एडिशन होगा। ओके, और यहां पर प्लस और यहां पर प्लस है, देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तो भी क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन। एंड यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, सी है माइनस और माइनस है, तो क्या होगा देखिए, तो सब्ट्रैक्शन होगा, फॅक्टर का सब्ट्रॅक्शन होगा। ये जो स्ट्रक्चर बताया मैं आपको ख्याल में रखिए, एवढं जे सांगितलं ते लक्षात ठेवा। ओके, आता इथं आपण पाहतोय हे झाल्यानंतर मी आता याला इरेज करतोय, पुसतो त्याला, तुम्ही लिहून घेतलं असेल त्याला, आता लिहून घेतलं असेल। आता पाहतोय आपण इथं तिसरं जे पद आहे ते -20 आहे, आणि या -20 चे अवयव आपल्याला पाडायचे। -20 कसं झालं पहा, इथं +1 आहे आणि हा +1 गुणिले 20 म्हणजे तो -20 झाला, बरोबर। आता -20 चे अवयव आपल्याला पाडायचे, आणि आपल्याला काय पाहिजे, आता इथं वजाबाकी पाहिजे, आणि वजाबाकी किती पाहिजे, इथं 1 असतो, इथं नसला तर 1 आला। आता इथं वजाबाकी 1 आणि अवयव काय येतील मग, बरोबर आहे, 4×5 = 20 अवयव झाले, 4 गुणिले 5। आता 4×5 = 20 हे अवयव झाले, परंतु बेरीज वजाबाकी अधिक पाहिजे का वजा पाहिजे, अधिक पाहिजे, म्हणून मोठ्या संख्येचं चिन्ह हे अधिक झालं आणि छोट्या संख्येचं चिन्ह हे काय झालं, वजा झालं। ओके, आता ते अवयव आलेले जे आहेत का ते इथं लिहूया आपण। आता इथं पहा, x² अधिक सांगा 5x वजा 4x वजा 20 बरोबर 0, -20 = 0। नाउ मेकिंग द ग्रुप ऑफ दिस, या दोघांचा ग्रुप केला आपण। आता ग्रुप केल्यानंतर याच्यातून कॉमन काय निघेल पहा, x will be a common here, and in the bracket what will be here x minus plus here, and ये x बाहर है तो यहां पर क्या है 5 here। Now minus will common here,
here is a minus and 4 will common, 4 कॉमन येतील आता इथं, कारण 4 न 20 ला भाग जातोय. ओके, आता इथं लिहिलं पण x हा वजा गुणिले वजा तो काय झाला अधिक झाला आणि 4 पंचे 20 म्हणजे इथं झालं 5 बरोबर 0. आता बघा हे दोन बॉक्स समान झाले का, हे दोन ब्रॅकेट समान झाले. ओके, आता हे दोन ब्रॅकेट जे समान आहे त्या समान ब्रॅकेटचं एक घालायचं आपल्याला, x अधिक 5 पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे x वजा 4 बरोबर 0. टेकिंग एव्हरी ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. प्रत्येक ब्रॅकेट बरोबर 0 घ्यायचं आपल्याला. मग इथं लिहिलं x अधिक 5 बरोबर 0 कॉमा x वजा 4 बरोबर 0. हा x अधिक 5 बरोबर 0 म्हणजेच x बरोबर काय ना सांगा अधिक 5 चा तिकडे गेला तो काय झाला वजा 5 आणि इथं लिहिलं x बरोबर हा वजा 4 चा तिकडे गेला किती झाला अधिक 4. ओके, आता सांगा आन्सर काय येणार -4, -5, -4 are the roots of the given quadratic equation. आता इथं आन्सर लिहिलं तुम्ही 4, -5 are the roots of the given quadratic equation. हे झालं एक्झाम्पल नंबर 2. ओके, आता आपण तिसऱ्या एक्झाम्पल कडे येऊया. आपण तोपर्यंत तुम्ही काय करा इथं ऑब्झर्व करा आणि ऑब्झर्व केल्यानंतर सोडून पहा एकदा रफ मध्ये. आणि आपण येतोय तिसऱ्या एक्झाम्पल कडे. मी तिसरं एक्झाम्पल इथं फळवरती लिहिलं. I will write here the third example, and third example is 2y². See here 2y² plus 27y. Third example 2y² plus 27y plus 13 is equal to 0. Okay, very simple example. I will erase this part here now, and we will see here. See, यहाँ पर क्या है, थर्ड टर्म 13 है और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 है. तो यहाँ पर हम 13 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेगा. यहाँ पर 13 आणि 2 यांचा गुणाकार करायचं. हे तिसरं पद आणि हे का पहिल्या पदाचं सहगुणक यांचा गुणाकार करायचा. गुणाकार किती झाला 13 दोन्ही 26. ओके, आता 26 चे अवयव असे पाळायचे. आता पहा दोन्ही साइन प्लस आणि प्लस आहे तर अवयवांची फॅक्टरचे काय असेल ऍडिशन असेल सम असेल बरोबर. आता इथं 26 चे अवयव पाळायचे आणि बेरीज किती पाहिजे आपल्याला 27. म्हणून आपण इथं लिहिलं 26 एक 26. हे अवयव झाले 26 एक 26 आणि 26 आणि किती झालं 27 बरोबर. आता ते अवयव इथं लिहूया आपण. 2y² plus 26y plus 1y and plus 13 is equal to 0 बरोबर. आता इथं 26y अधिक y म्हणजे किती झालं 27y. आता इथं पहा या दोघांचा ग्रुप केला आणि या दोघांचा ग्रुप केला. आता याच्यातून कॉमन काय निघेल 2 न 26 ला भाग जातो म्हणून 2 कॉमन निघली आणि 1y कॉमन निघला म्हणून y आला y. मग इथं 2y कॉमन आणि मध्ये सांगा हा y अधिक 13 दोन्ही 26 म्हणजे 13 अधिक इथं कॉमन काहीच निघत नाही म्हणजे एक कॉमन असते. मग इथं लिहिलं 1 कंसामध्ये लिहिलं y अधिक 13 बरोबर 0 बरोबर. आता इथं कॉमन कोणता काउंट झाला कोणता ब्रॅकेट झाला कॉमन y plus 13 and y plus 13. तो एकदा लिहिला y plus 13 is a common bracket and second bracket will be 2y plus 1. Okay, 2y plus 1 is equal to 0. It is the second bracket. Now friend, taking every bracket is equal to 0. प्रत्येक कंस आपल्याला 0 घ्यायचा आहे. आता इथं लिहितोय y अधिक 13 y plus 13 is equal to 0 and second bracket is 2y plus 1 is equal to 0. Okay, now see here y plus 13 हा plus 13 तिकडे गेलाय तो काय झाला -13. y is equal to -13 comma here 2y is equal to plus 1 चा तिकडे गेला तो काय झाला -1 झाला. आणि आता आपल्याला y काढायचं आपल्याला म्हणून y is equal to here -1/2 हा +2 चा मल्टिप्लाय 2 चा इकडे काय झालं डिवाइडेड बाय 2 झाला. आता आन्सर तुम्हाला मिळालाय काय आन्सर आहे पहा -13
-13, -1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे झालं तुमचं तिसरं एक्झाम्पल. -13, -1/2 हे तिसरं एक्झाम्पल झालं. तर मित्रांनो, उद्या आपण पुढची उदाहरणं आपण कम्प्लीट करतोय. हे झालेले उदाहरणं कम्प्लीट करा आणि थोडंसं 1-2 दिवस आपला व्हिडिओ टाकायला उशीर झाला. पाठीमागं तुम्हाला मी जे 25% जो भाग डिलीट झालाय तो भाग तुम्हाला मी दिला होता आणि त्याच्यामुळे थोडंसं कोणता भाग कमी झालाय आणि कोणती उदाहरणं कमी झाले ते एकदा पहा आणि पुन्हा नंतर आपण जो डिलीट झालेला भाग आहे तो तुमच्या स्वयंमाध्यमासाठी आणि या वर्षीच आपल्याला पोर्शन कम्प्लीट करायचे लवकर आपण थोडंसं स्पीडमध्ये जे झालेले जे आहेत म्हणजे 25% वगळता जो भाग आहे आपल्याला सिलेबसमध्ये तो आपण कम्प्लीट करतोय. ओके, थँक्यू, व्हेरी गुड, थँक्यू.